Assalamualaikum everyone, how are you all? Welcome to Madmuna. I'm Mamuna. As you already know, I'm a doctor by profession. I just recently gave my PLABs and I'm here to talk about my PLAB journey, and I'm here to guide you about what you need to know about this journey. तो हमारा आज का टॉपिक है जीएमसी रजिस्ट्रेशन। मैंने पहले बात की हुई है प्लैब 1, प्लैब 2 और आइल्स के बारे में इन डिटेल। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ go watch them. Today's topic is GMC registration. I'll be talking about in detail about how you can apply for your registration and what are the expenses associated with this registration. So without any further delay, let's get into the topic. There are three types of GMC registration. Number 1 is provisional, number 2 is full registration, and number 3 is a specialist registration. Full GMC registration, and what is the main requirement for full GMC registration? The main thing which is required for your full GMC registration is your PLAB 2 exam. You need to have passed your PLAB 2 exam, then only you can apply for your full GMC registration. When you are done with your PLAB 2 exam and you are waiting for your results, आप अपना GMC registration का process वहाँ से ही start कर सकते हैं, because there are 2 documents you need to prepare before applying for GMC registration. Number 1 is good standing certificate from the licensing body of your country, which is PMC in Pakistan, and number 2 is EPIC ECFMG degree verification. Good standing certificate is valid for only 3 months. Fees is 5,000 rupees at the moment in Pakistan. You can apply on the PMC website online. You don't need to have to go to PMC to apply for this. You can apply online, you can pay online, and they will send you the document within 14 days. This is what they say on your email address in a PDF form, and also they send you the hard copy of the document on your given address. EPIC ESFMG. So how to apply for this? It is a US based body which helps to verify the medical graduates degrees all over the world, और फिर वो GMC को भेजते हैं वो डिग्रीज। तो आपने उसके लिए अप्लाई कैसे करना है? गो ऑन गूगल, सर्च फॉर EPIC ECFMG, उनका पेज खुल के आ जाएगा, उनकी वेबसाइट। वहाँ पर आप अपना अकाउंट बनाएंगे, अपनी सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। इट्स लाइक टू फिल एन एप्लीकेशन। वो आपने सारी एप्लीकेशन फिल की, अपनी सारी इन्फॉर्मेशन दी। जब आप वो कर देंगे तो नेक्स्ट आपका वो डॉक्यूमेंट्स पे चला जाएगा कि आप कौन से डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाना चाहते हैं। आप अपनी प्राइमरी मेडिकल क्वालिफिकेशन को वेरीफाई करवाना चाहते हैं। दे विल कन्फर्म योर आइडेंटिटी थ्रू अ वीडियो कॉल, जिसमें जब आपने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी होगी, सारी एप्लीकेशन फिल कर दी होगी, उसके बाद वो आपको एक ईमेल भेजेंगे जिसमें वो एक लिंक भेजेंगे, जिस पे गिवन टाइम और डेट पे आपने उस लिंक को क्लिक करना होगा। तो वो आपको वीडियो कॉल की तरफ डायरेक्ट कर देगा, और वहाँ पर वो आपकी आइडेंटिफिकेशन कंफर्म करेंगे थ्रू अ वीडियो कॉल। यू नीड टू हैव योर वैलिड पासपोर्ट विद यू एट दैट टाइम, क्योंकि वो आपकी आइडेंटिफिकेशन पासपोर्ट से वेरीफाई करेंगे। एंड देन यू कैन अपलोड योर क्रेडेंशियल, जो भी आपने करवाना है। फॉर PLAB 2 वी ओनली नीड टू upload our primary medical qualification certificate, which is our degree. The fees for this verification is, वो 2 दफ़ा चालू बन जाता है। एक दफ़ा $99 देना होता है, नेक्स्ट टाइम 110, 12 इस तरह कुछ डॉलर्स देना होता है। तो वो मैं नीचे लिख दूंगी स्क्रीन पे, ताकि वो एक कंफर्म अमाउंट आपके पास आ जाए। ठीक है, ये आपने गुड स्टैंडिंग भी बना लिया, अपना EPIC भी बना लिया। अब आपका PLAB 2 का रिजल्ट आ गया है 1 मंथ बाद, एंड यू हैव पास्ड योर एग्जाम। नाउ व्हाट टू डू? अप्लाई फॉर GMC रजिस्ट्रेशन ऑन योर GMC ऑनलाइन अकाउंट। वहाँ पर आप जाएं, आपने एक पूरी फुल GMC रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है। आपने वो एप्लीकेशन ओपन की, उसमें आपने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन देनी है कि आप ग्रेजुएशन के बाद से अब तक क्या कर रहे थे। यू हैव टू गिव ऑल द इन्फॉर्मेशन टू दैम, और उसमें अगर कोई गैप्स आपने लिए हैं, लेट्स से 3 मंथ्स का, 6 मंथ्स का, तो वो भी आपने वहाँ पे उनको करना होगा, सारा बताना होगा कि मैं इस गैप के दौरान क्या कर रही थी और कहाँ पर थी। आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल दिस एप्लीकेशन, इट टेक्स, लाइक मेरे केस में
इट टुक 3 to 4 days, क्योंकि मैं हर चीज़ पूरे प्रॉपर एविडेंसेस के साथ और सब कुछ करके जो है वो कर रही थी, अगर किसी भी चीज़ का वो मुझसे एविडेंस मांग लेते हैं तो मैं उनको प्रोवाइड कर सकूँ। 3-4 दिन में कंप्लीट हो गई एप्लीकेशन, मैंने सबमिट कर दी। जीएमसी रजिस्ट्रेशन फ़ीस पाउंड्स में देनी होती है और ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपकी ग्रेजुएशन को लेस देन 5 years है तो उसकी फ़ीस कम है, अगर इसको मोर देन 5 years हो गए हैं तो उसकी फ़ीस ज़्यादा है। लेस देन 5 years में अराउंड 100 pounds है, 160 या 170 इस तरह, 200 pounds से कम है। एंड फॉर इफ़ यू ग्रेजुएटेड मोर देन 5 years ago तो फिर आपकी फ़ीस 450 pounds के अराउंड बन जाती है। मैं कंफर्म अमाउंट जो है वो नीचे स्क्रीन पर लिख दूंगी ताकि आपकी आसानी के लिए। तो these are all the expenses which are included in GMC registration. This is how you go through this process. अच्छा, अब आपने एप्लीकेशन सबमिट कर दी है, अब क्या होगा, जब आप एप्लीकेशन सबमिट कर देंगे, पेमेंट कर देंगे, तो आपको एक ईमेल आएगी जीएमसी की तरफ से जिसमें वो आपसे 5 to 6 डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, जिसमें आपकी एपिक और गुड स्टैंडिंग भी इंक्लूडेड होता है अलॉन्ग विद योर पासपोर्ट एंड योर हाउस जॉब सर्टिफिकेट्स, और एक और कोई डॉक्यूमेंट होता है, मोस्ट प्रोबेबली योर डिग्री। जब आप वो भेज देते हैं उनको पीडीएफ फॉर्म में ईमेल में, तो प्लीज़ जो डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं सिर्फ वो भेजें, ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स भेजने की ज़रूरत नहीं है। उसमें सिर्फ और सिर्फ ये नुकसान होगा कि आपका प्रोसेस डिले हो जाएगा और हो सकता है कि वो कोई क्लू पकड़ लें जिस पे वो आपसे फर्दर इन्वेस्टिगेशन ले लें। इसलिए जो मांगा है, जितना मांगा है, प्लीज़ उससे ज़्यादा मत भेजें। एंड देन वेट फॉर योर for their email. Usually they grant you full GMC registration within 5 to 6 days, 5 working days. This is what they say. मेरा 5 वर्किंग डेज में अकाउंट पे अपलोड हो गया था कि मुझे ग्रांट हो गई है, लेकिन मुझे ईमेल नेक्स्ट डे आई थी, लाइक 6th और 7th डे पे मुझे ईमेल आई थी। तो दिस इज़ व्हाट दे डू। अगर उनको कोई भी कन्फ्यूजन होती है या उनको किसी चीज़ में कोई शक होता है तो दे सेंड यू एन ईमेल कि आप इस पे हमें जो है वो इसका प्रूफ दें या इसको क्लैरिफाई करें, तब यू कैन गिव ऑल द एविडेंसेस यू हैव कलेक्टेड, तब आपने जाके उनको एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स देने, अदरवाइज प्लीज डू नॉट सेंड देम द डॉक्यूमेंट्स। ऑल राइट, नाउ यू बीन ग्रांटेड फुल जीएमसी रजिस्ट्रेशन बाय द जीएमसी, यू गॉट द ईमेल, आपके जीमेल आपके जीएमसी ऑनलाइन अकाउंट में भी वो अपडेट हो गया है। नाउ व्हाट? Congratulations! Now you can apply for the jobs and then you can start your UK journey. Okay, so how to apply for the jobs? Just go on nhsjobs.uk and there you can start applying for the jobs. While you are waiting for your full GMC registration, आप उनकी ईमेल का वेट कर रहे हैं, उन 5 days में आप क्या कर सकते हैं कि आप NHS जॉब्स पे जाके अपनी ऑनलाइन CV बना सकते हैं, बिकॉज इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, लाइक इट्स लाइक एन एप्लीकेशन जो कि आप CV की तरह बनाते हैं, and then you can use this application on all the jobs you are going to apply in the near future. तो आप अपनी ऑनलाइन CV बना लें इतने दिनों में, जैसे ही आपको ईमेल आती है, जैसे ही आपके ऑनलाइन अकाउंट में अपडेट हो जाता है कि यू हैव बीन ग्रांटेड GMC रजिस्ट्रेशन, यू कैन जस्ट गो ऑन NHS जॉब्स। आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन, आपका अकाउंट पहले से बना हुआ होगा, आप उस एप्लीकेशन को यूज़ करते हुए बहुत सारी पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। मैंने ऑनलाइन CV बना ली थी, उस पर जाकर अकाउंट बना के NHS जॉब्स पे अकाउंट बना के ऑनलाइन CV बना ली थी, और मुझे जितने भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना होता है तो मैं उसमें सिर्फ थोड़ी सी अमेंडमेंट्स करके अकॉर्डिंग टू द पोस्ट रिक्वायरमेंट्स और मैं एप्लीकेशन सबमिट कर देती हूँ। वन थिंग, जब भी आप भी कोई एप्लीकेशन सबमिट करने लगे उस पोस्ट की जॉब रिक्वायरमेंट्स ज़रूर देख लें, जॉब डिस्क्रिप्शन ज़रूर देख लें, क्योंकि उनका क्राइटेरिया दिया होता है कि आपके पास ये चीज़ें होना ज़रूरी हैं। GMC रजिस्ट्रेशन जिसमें ऑन द टॉप होता है कि यू शुड हैव फुल GMC रजिस्ट्रेशन। उसके अलावा कुछ पोस्ट में MRCP की नीड होती है, कुछ में नहीं होती है। यू कैन जस्ट सर्च फॉर इट और एंड अप्लाई फॉर इट। Another thing, what posts you can apply after GMC registration, after your full GMC registration, after giving plebs, you can apply for foundation year 2 level and बहुत सारे मेरे कलीग जो कि यूके में काम कर रहे हैं उन्होंने मुझे बताया कि यू कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर जूनियर क्लिनिकल फेलो पोस्ट। तो these 2 posts are trust grade doctor posts and you can apply for both of them. So this was all about GMC registration and the expenses associated with this registration.
विश यू वेरी गुड लक विद योर प्लैब जर्नी, और अगर आपने प्लैब 2 कर लिया है तो विश यू गुड लक फॉर योर जॉब. आई एम ऑल्सो सर्चिंग फॉर जॉब्स एंड गिविंग इंटरव्यूज़, and will update you guys soon inshallah about my job. I think मैंने इस टॉपिक पे हर चीज़ कवर कर ली है, बट स्टिल इफ़ यू थिंक कि कोई चीज़ रह गई है, कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो आपको नहीं आप तक नहीं पहुंची है, प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो. आई विल बी रियली हैप्पी टू आंसर ऑल ऑफ़ योर क्वेश्चंस. और अगर नीड हुई और कोई ज़रूरत हुई तो मैं इस पर एक और वीडियो बना लूँगी, अगर कोई ऐसा टॉपिक मैंने मिस कर दिया हुआ तो. Thank you so much for watching my video. For IELTS Pleb 1 and Pleb 2, please go to my channel and watch the videos. I've given a lot of details in those videos also. Okay, Allah Hafiz.